ہر دن اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن کچھ دن اللہ کے نزدیک اور بھی زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ آج جمعے کا مبارک دن بھی ہے اور 10 محرم کا روزہ بھی۔ آئیے سحری سے لے کر افطاری تک یہ خوبصورت سفر میرے ساتھ گزاریے۔ یہ ایک ولاگ نہیں، اس میں آپ کو بہت ساری اسلامک باتیں بھی بتاؤں گی جن سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ آج 10 محرم ہے اور سب سے پیارا دن ہے، کیونکہ آج جمعہ بھی ہے، اللہ کا خاص رحمت و برکت والا دن بھی ہے۔ تو آج آپ سبھی نے بھی روزہ رکھا ہوگا، تو میں نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا۔ میں سحری میں اٹھی جلدی سے اور میں نے اپنی چائے بنائی اور میں نے اس کے ساتھ بریڈ بھی روسٹ کیے۔ اس کے بعد اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑا سا دن نکل آیا، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ابھی فجر کی نماز کا ہی ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے آج فرائیڈے بھی تھا تو ہمیں سورہ کہف کی سورہ بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ سورہ یاسین کو پڑھنے سے دل میں الگ ہی سکون ملتا ہے اور ہمارا دن اللہ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے۔ تو آپ ایوری ڈے ڈیلی سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں، اور آج جیسے کہ فرائیڈے ہے تو سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیا کریں ایوری فرائیڈے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ تو آپ خود بھی پڑھا کریں ایوری فرائیڈے، اور اپنے گھر پر بھی سبھی سے پڑھنے کے لیے بولا کریں۔ اور دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہماری عبادت اور ہمارے پڑھنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں جیسا حق کے ادا کرنے کا ویسا حق ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ تو اس کے بعد میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ضرور پڑھتی ہوں۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صبح اور شام یہ آپ سورہ حشر کی 3 آیتیں ضرور پڑھا کریں، آپ اس کے معنی دیکھ سکتے ہیں۔ جو بندہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور جو شخص رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک اس پر 70,000 فرشتے رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ اس سورہ کو بالکل بھی مس مت کیا کریں، صبح اور شام لازمی پڑھا کریں۔ یہ بھی میں پڑھتی ہوں، اس کے بھی بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ تو آپ یہ ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے 24 سورہ اینڈ 26 سورہ، اس میں آپ کو یہ ساری صورتیں مل جائیں گی۔ سو یہ بھی میں ایوری نماز کے بعد بھی پڑھ لیتی ہوں، یا پھر جو بھی مجھے یاد آتی ہے تو میں یہ سورہ پڑھ لیتی ہوں۔ اس کے بھی بہت بڑے فائدے ہیں، جیسے کہ آپ معنی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اینڈ اس کے بعد میں صبح کی جو دعائیں ہیں وہ میں لازمی پڑھتی ہوں۔ ہم موسٹلی استغفار تو پڑھتے ہی ہیں، کبھی چھوٹا والا پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ، یا پھر دوسرا پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن یہ والا جو نیچے والا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسے سید الاستغفار کہتے ہیں۔ یہ آپ صبح اور شام لازمی پڑھا کریں، اس استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ معنی میں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو بالکل بھی پڑھنا مت بھولا کریں، صبح اور شام ایک مرتبہ اسے لازمی پڑھا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اللہ کے ذکر کے لیے لازمی ٹائم نکالا کریں، یعنی تسبیح بھی پڑھا کریں، اور ہم میں سے سبھی تو پڑھتے ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور اس میں بہت برکت ہے۔ اینڈ اس کے بعد میں تیسرے کلمے والی تسبیح پڑھتی ہوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر کلمہ اور ہر ذکر ہمیں اللہ کے اور قریب کرتا ہے۔ پھر میں استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ ہم سب سے جانے انجانے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے اللہ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ دل کو سکون اور رزق میں برکت کا بھی سبب بنتا ہے، اور اس میں بے شمار برکتیں آتی ہیں۔ اینڈ اس کے بعد میں درود شریف پڑھتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ 3 تسبیح آپ فجر کے بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی ضرور پڑھا کریں۔ تو اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا تھا، اینڈ اس کے بعد اٹھی تو میں نے پہلے ونڈو اوپن کی۔ صبح کی باہر کی جو ہوا ہوتی ہے جب وہ اندر آتی ہے تو الگ ہی فریش فیل ہوتا ہے، اور باہر کی جو ہوا ہے وہ اندر آنی بھی چاہیے۔ اور دوپہر کے ٹائم تو ہمیں ونڈو وغیرہ یہ بند کر دینی چاہیے، کیونکہ دوپہر کے ٹائم تو اس ٹائم شدید گرمی بھی ہو رہی ہے اور باہر کی جو ہوا ہے وہ گرم اندر آتی ہے۔ تو صبح اور شام کے ٹائم اپنی ونڈو اور گیٹ جو ہے وہ اوپن کر لیا کریں۔ تو میں نے رات میں کپڑے واش کیے تھے، تو رات کو ہی میں نے یہ سوکھنے کے لیے رسی پر
डाल दिए तो ये सब सूख चुके थे, तो मैंने सबकी तह बनाई। एंड इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरा ही रोज़ा था, बाकी किसी का भी रोज़ा नहीं था, तो मुझे उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना था जिन लोगों का रोज़ा नहीं था। तो मैं सबसे पहले किचन में आई। मैं अपनी किचन को ना रात में ही क्लीन करके सोती हूँ, और ये मेरे सहरी के टाइम पर थोड़े बर्तन सन गए थे, तो वो थे, मैंने सोचा मैं पहले इनको वॉश कर देती हूँ, ताकि एकदम जो किचन है एकदम से क्लीन हो जाए और मेरे माइंड को भी रिलैक्स फील हो जाए। एंड क्योंकि एक साथ ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं जो बाद में वॉश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी जब आपके बर्तन सन जाया करें, उन्हें जल्दी जल्दी वॉश कर लिया करें, इससे आपके लिए भी ईजी होता है। एंड इसके बाद मैं चुकंदर का जूस बनाने लगी अपने हस्बैंड के लिए। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, कभी किचन, कभी सफाई, कभी कपड़े, और इसी तरह पूरे दिन निकल जाता है। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि अगर हम अपनी नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर लें और अपनी ज़बान पर अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें, तो ये रोज़मर्रा के काम भी हमारे लिए सवाब का ज़रिया बन सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज़ी कुरान की तिलावत का नाम है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर हलाल काम अगर अच्छी नीयत के साथ किया जाए तो वो भी हमारे लिए इबादत बन सकता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि काम करते हुए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ पढ़ती रहूँ। ज़िंदगी में परेशानियाँ सबके पास होती हैं, कभी दिल उदास होता है, कभी किसी बात की फ़िक्र रहती है। ऐसे वक्त में इंसान को सबसे ज़्यादा अल्लाह को याद करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। इसलिए जब भी आप घर का कोई काम करें, सिर्फ हाथ को काम में मशगूल रखिए और ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र में। शायद ये चंद लम्हे ही अल्लाह की रहमत और बरकत का सबब बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपना शुक्र अदा करने वाला और हर हाल में अपना ज़िक्र करने वाला और उसकी इताअत में ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, और हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पर जब मैं चुकंदर का जूस छानती हूँ, एक बड़ी छन्नी ही लेकर छानती हूँ, क्योंकि अगर मैं छोटी छन्नी को ऐसे लेकर छानती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी इसमें से निकलता नहीं है और बड़ा गूदा है। तो मैंने चम्मच ली बड़ी वाली, इसको थोड़ा सा प्रेस किया, दबाया, और थोड़ा जो इसका जो मोटा मोटा गूदा था वो ऊपर रह गया, और ये हमारा जूस निकल चुका है। क्योंकि बड़ी छन्नी से हमारे लिए ईजी भी हो जाता है। आप बड़ी छन्नी के नीचे थोड़ा बड़ा बर्तन लगा लें जो आपकी छन्नी उस पर सही सूटेबल हो जाए। तो मैं जब भी हमेशा चुकंदर का जूस छानती हूँ तो वो बड़ी छन्नी ही लेकर छानती हूँ। एंड इसके बाद हमारा ये जूस रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैंने ये जूस अपने हस्बैंड को दे के आना है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो ये मेरा जूस रेडी हो चुका है। इसके बाद आ गई थी क्लीनिंग की बारी घर की। मेरा क्या होता है कि मैं रात में ही अपना पूरा घर क्लीन करके सोती हूँ, किचन क्लीन करके सोती हूँ, ताकि हम जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो हमारा माइंड एकदम रिलैक्स फील करे। कोई भी हमारा जो सामान होता है बिखरा हुआ नहीं मिलता, सब कुछ समेटा हुआ मिलता है। अगर हम रात को ऐसे ही सो जाएं, हमारे घर में कोई गंदगी है या कोई सामान फैला हुआ पड़ा है, तो जब हम सुबह को उठते हैं ना तो और ज़्यादा हमारा जो मन है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और भी किसी काम को करने का मन नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि मेरे घर को कितना क्लीन पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं रात को एक बार सही से अपने घर को क्लीन करके तब सोती हूँ, किचन भी क्लीन करके सोती हूँ। तो आगे से आप मेरी ये टिप ज़रूर आजमाएं। अपना घर का काम आप रात को ही करके सोया करें, एकदम क्लीन घर करके सोया करें। फिर इसके बाद मैं अपने घर को दोबारा उठकर सुबह को क्लीन करती हूँ। मेरे लिए क्लीन करना घर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई फैला हुआ होता नहीं है, इतनी कोई डस्ट होती नहीं है। फिर भी मैं पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ, डस्ट वगैरह साफ़ करती हूँ, और जो भी कोई सामान होता है वो इधर उधर बिखरा होता है, बहुत कम होता है, बहुत मामूली से होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर को ठीक तरीके से क्लीन करती हूँ। एंड इसके बाद अब मैंने अपने घर एकदम क्लीन दोबारा कर लिया है मॉर्निंग में, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद जो मेरे कुछ प्लांट हैं, कुछ तो बाहर रखे हुए हैं जो बड़े बड़े से हैं, एंड ये छोटे छोटे से पॉट हैं जिसमें मनी प्लांट और भी प्लांट हैं, ये मैं रात में बाहर रख देती हूँ ओस में। और क्योंकि बाहर रख कर ना जब इनको ओस मिलती है तो और भी ज़्यादा एकदम फ्रेश से ये प्लांट सारे हो जाते हैं, और सुबह को मैं इनमें थोड़ा सा पानी लगाकर मैं सारे प्लांट अंदर ला के रख लेती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। क्योंकि पौधों को ना ओस लगनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फ्रेश प्लांट हमारे घर के अंदर होते हैं तो अलग ही फील होता है। इसलिए प्लांट भी अपने घर के अंदर रखा करें आप। नेचुरली हमें जो चीज़ हमारे सामने होती है, हमारी आंखों को भी सुकून मिलता है इन चीज़ों को देखकर।
अब आ गई थी लंच बनाने की तैयारी, क्योंकि लंच में मैंने थोड़ी सी चावल बना लिए थे, थोड़ी सी रोटी, और क्या कहते हैं पास में ही अम्मी का घर है तो उन्होंने मुझे छाछ पकौड़ी वाला रायता जो होता है वो भिजवा दिया था। एक बात जो मुझे हमेशा याद रहती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए। आज हमारे घर में खाना मौजूद है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और बहुत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी आसानी से नसीब नहीं होती। इसलिए जब भी खाना देखें सिर्फ उसका मज़ा ना सोचिए बल्कि उस रब को याद कीजिए जिसने ये रिज़्क हम तक पहुंचाया है। हर निवाले अल्लाह की एक नेमत है। अगर हम शुक्र करते रहेंगे तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों में और इजाफ़ा फरमाता है। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़िए और खाना ख़त्म होने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये छोटी सी सुन्नत हमारी ज़िंदगी में बरकत ला सकती है। एज़ यू नो, आज जुम्मे का मुबारक दिन है। ये हफ़्ते का सबसे अफजल दिन है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए ये एक ख़ास नेमत बनाया है। जुम्मे का दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दिन दुरूद शरीफ की कसरत रहने की तरगीब दी है। इस दिन दुआओं की कबूलियत की भी एक ख़ास घड़ी होती है, इसलिए आज के दिन अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और पूरी उम्मत के लिए दिल से दुआ ज़रूर कीजिए। हम सब अपनी दुनिया की फ़िक्र में लगे रहते हैं, लेकिन जुम्मे का दिन हमें याद दिलाता है कि अपने रब के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना सबसे ज़रूरी है। अल्लाह ताला से जो भी मांगना हो आज के दिन दिल से मांगिए, वो अपने बंदों की दुआ सुनने वाला और कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हमारे घरों में बरकत अता फ़रमाए और हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हो गया था असर की नमाज़ का टाइम। असर की नमाज़ अदा की। ये जो दरूद शरीफ है, ये दरूद शरीफ आपने असर की नमाज़ के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा पढ़ना चाहिए और इसका बहुत बड़ा अज़र है। इसके ना 80 साल के जो गुनाह हैं वो माफ़ होते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब उसके लिए लिखा जाएगा। सुबहान अल्लाह। तो इस वाले दरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है। कोशिश किया करें हर जुम्मे आप असर की नमाज़ के बाद ये वाला दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। इसे बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा असर है। अब इफ्तारी की तैयारी का वक्त हो गया है। पूरा दिन रोज़े की हालत में गुजरा और अब मगरिब का इंतज़ार है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह की इताअत का नाम है। कभी कभी हम इफ्तार की तैयारी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि दुआ करना भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए रोज़ा रखने वाले की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल होने की उम्मीद होती है। इसलिए इस कीमती वक्त को सिर्फ खाना बनाने में नहीं बल्कि अल्लाह से दिल खोलकर दुआ मांगने में भी गुजारना चाहिए। आज अगर अल्लाह ने हमें रोज़ा पूरा करने की तौफीक दी है तो ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बीमारी या किसी और वजह से रोज़ा नहीं रख पाते, इसलिए हर निवाले खाने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और एक बात, जब आप अपने लिए दुआ करें तो अपने वालिदैन, अपने घर वालों और पूरी उम्मत के लिए भी दुआ ज़रूर कीजिए। दुआ देने से हमारा कुछ कम नहीं होता बल्कि अल्लाह और ज़्यादा अता फरमाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़े, हमारी दुआओं और हमारी इबादत कबूल फ़रमाए, हमारे घरों में बरकत अता फ़रमाए, हमारे दिलों को सुकून दे और हम सबको अपनी रहमत से नवाज़ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह ताला हम सब के जिसने रोज़े रखे हैं, जिसने जो भी इबादत की है, अल्लाह ताला सबकी इबादत को और सबके रोज़े को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मैं ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही इस्लामिक ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें एंड लाइक करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।